The speaker is unbelievable and experience shared are completely personal and won't be same for anyone. All the problems and solutions shared were handled based on the situation and the mood of the speaker. Namaste everyone. So thank you for handing over me the mic. Quite a lot has been said in my introduction, and actually it makes me happy and proud. I like to express my gratitude to Harsh sir, Banastali family for considering me and giving me this honor. Lastly, but I want to thank Satakshi and my uncle Praveen Babel for always helping me out to do things. Well, I'm not actually prepared like what I will be speaking to you in the next 20 to 15 minutes, but that's like 201% sure that you will be thinking me as a fool or a stupid, but also you will be like thinking me like how I went into dilemma about the things that actually happened to me. And also you will be laughing a lot, and that's like what I am. I believe I am a person who is made out of mistakes, a person who actually makes make mistakes, learn from them, and that's like how my bucket of achievements is getting like little being fulfilled. So today I'll be taking you to September 2022, like exactly just a few months back. That's just like a dream. It is like a dream come true for me in the month of September. But believe me, actually my dream didn't come true. It's just I had one of the bucket list like every one of you has. It is like the world to the it is like the world second longest track, that is to Mount Everest base camp. It is like almost 14 to 20 days depending on you and your track mates. So I started preparing. like Mount Everest बिल्कुल भी easy नहीं है. तो मैंने पहले से ही खुद पे, और मेरे एक ट्रैक मेट है लाइक ही इज़ एल्डर टू मी, यू कैन से अंकल, लाइक इन द लेटर ऑफ द स्पीच आई विल बी रेफरिंग हिम एज अ अंकल. तो अंकल और मैंने स्टार्ट प्रिपेयर कर लिया था. हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए हम वर्क कर रहे थे. आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माई belongings or something. I started buying all those things. Like I was preparing myself against all the natural calamities, but believe me, what actually hit me was the human disaster. I had all my backups, but I was not actually prepared for this human disaster. I was mentally prepared. like हमें कोई बीमारी हो सकती है, हमें है ना ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. बट पता है what actually happened was मेरे अंकल he went missing. लाइक इट वॉज लाइक जब मेरा डे मेरे को, हम लोग जब एज अ ट्रैकर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग ये इस मैंटालिटी के साथ जाते हैं कि हम डे बाय डे हम लोगों का ट्रैक और डिफ़िकल्ट होएगा. बट बिलीव मी, मेरे साथ तो मेरा फर्स्ट डे ही सबसे पीकेस्ट डे पे चला गया, एंड दैट इज़ वॉट एक्चुअली टर्न ओवर माई लाइफ. दैट इज़ एक्चुअली वॉट बिल्ड मी, एंड टुडे आई एम सो कॉन्फिडेंटली स्टैंडिंग एंड आई एम बैक टू इंडिया. दैट इज़ लाइक that is the whole story that I am going to plot to you guys today. तो हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग हमारा ट्रैक स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैक. हम लोग जैसे हम लोगों ने 6:30 या 6 अराउंड स्टार्ट किया था. तो जैसे जैसे हम जा रहे थे आगे, वैसे ट्रैक हम लोग डिफरेंट टेरेंट्स, जो ट्रैक का टेरेंट्स है ना, हम डिफरेंट टेरेंट्स के अक्रॉस जा रहे थे. एंड इट वाज ऑलवेज लाइक कभी बारिश आ रही है, कभी पानी आ रहा है, कभी वाटरफॉल है, तो हमें उसे भी क्रॉस करना है, कभी कीचड़ है. एंड बिलीव मी, इन एवरी ट्रैक आई वाज लाइक शिट, मैं ज़िंदा जा पाऊँगी यहाँ से. या एक तरफ खाई होती थी और एक तरफ मेरे को आना ऐसा था कि यहाँ गिरना है या यहाँ गिरना है. तो इट वॉज आई वॉज लाइक क्या मतलब, बट इट वॉज लाइक कि मैंने ये डिसाइड किया तो हम लोग चलेंगे, हम लोग करेंगे. लॉट मेनी टाइम्स वी वर लाइक आउट ऑफ ब्रीथ. ऐसा सीन है कि मैंने ये जर्नी खुद से डिसाइड करी है, तो मुझे ऐसा है कि मुझे इसे कंप्लीट करनी है. आई कांट बी लाइक गोइंग बैक. लाइक
आई हैवन कंप्लीटेड। मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है देयर आर लॉट मैनी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बोला कि हम कभी ये ड्रीम नहीं रह सकते, बट तू हमारे लिए जी कर आएगी। सो दैट वॉज दी ओनली मोटिवेशन। तो हम लोग आगे ट्रैक कर रहे थे, तो कभी वो ट्रैक अपहिल पे जा रहा था और डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड ऐसा आया था कि हम लोग आगे पीछे हो गए। सो वाइल स्टार्टिंग दी ट्रैक हम लोगों का ये था कि एवरी डे हम लोग किसी सर्टेन डेस्टिनेशन पे रीच करेंगे। तो हम अगर रास्ते में कहीं भूल जाते हैं या कहीं अलग हो जाते हैं, तो दैट वुड बी द पॉइंट, द रेस्टिंग पॉइंट फॉर आवर डे। आई जस्ट क्रॉस्ड, हम लोगों का था कि 5-6 आवर्स तक हम लोग चले, एंड आई जस्ट वेंट थ्रू द मोस्ट डेंजरस, आई बिलीव इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरेन जो मैंने क्रॉस किया था विद सम ऑफ द नेपाली गाइज, बिकॉज मैं अकेले तो उसे बिल्कुल भी नहीं क्रॉस कर पाती। हम जैसे ही वहाँ पे आए तो अंकल आ ही नहीं। तो जहाँ सबसे नियरेस्ट टाउन और विलेज आई कैन से, वहाँ पे जो टी हाउसेस थे, जहाँ पे पुलिस स्टेशन भी था, तो इट वाज हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम वहाँ जाके अंकल का वेट करेंगे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ 1 होल डे। 1 आवर अंकल नहीं आए, 2 आवर नहीं आए, पूरी रात निकल गई, अगले दिन भी नहीं आए। तो आए, एक तो मैं नेपाल में लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि आप जितना ऊपर जाते हैं ना उतने लोग ट्रेडिशनल्स, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज की तरफ जाते रहते हैं। तो डैट वॉज दी मेन। तो मैं उनको, और है ना, बिलीव मी, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नेट भी नहीं चल रहा था, इंडियन सिम वर्क नहीं कर रही थी, और जो नेपाली सिम है, बिकॉज ऑफ दी हाइट और दी एल्टीट्यूड, वहाँ पे उन लोगों के पास ना तो है ना जो मतलब जो उनका स्ट्रक्चर था ना, वहाँ पे वाईफाईज भी प्रोवाइडेड नहीं थे, वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सो द लोकल लोग और उनके जो कनेक्शंस थे ना, उन्हीं के थ्रू मुझे हेल्प लेनी थी। तो मैंने उनको एनी हाउ थ्रू लाइक एक्शंस, गेस्चर्स, मैंने उनको समझाया लाइक वन ऑफ माई कंपेनियन इज़ मिसिंग एंड उनसे ढूंढो। आई वॉज वरिड, क्योंकि वो इतना डिफ़िकल्ट था कि अंकल कहीं गिर तो नहीं गए खाई में या कुछ, या ही माइट हैव टेकन अ रॉन्ग वे और वो किसी और दूसरे डायरेक्शन में चले गए। I went to police, and believe me, the whole thing that actually happened to me was, मैं पुलिस के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ अंकल को ढूंढ रही हूँ and they took me back to the same place where I started। and तब वहाँ पे कहाँ रुके थे, बिकॉज उनको ऐसा सीन था कि एक अकेली लड़की जिसका, हाँ ऑफकोर्स आई फॉरगॉट टू मेंशन यू, कि मेरा सारा बिलोंगिंग्स, लाइक जो मॉनेटरी बिलोंगिंग्स थी, फाइनेंशियल बिलोंगिंग्स थी ना, वो उन्हीं के पास थी। मतलब आई जस्ट हैड द इमरजेंसी फ़ंड, बट बिलीव मी, वहाँ जिस पॉइंट पे मैं थी ना, वहाँ पे वो इमरजेंसी फ़ंड भी काम नहीं आने वाला था। तो ऐसा सीन था कि मैं पूरी पुलिस टीम, रेस्क्यू टीम के साथ सब गई थी। स्टार्टिंग में तो सबको ये लग रहा था कि मैं गलत हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, बट सूनर जैसे ही पुलिस और इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तब सबसे पहला तो ये हुआ था कि मेरा ATM कार्ड, मेरे सारी IDs वगैरह उन लोगों ने ले ली थी। तो आई हैव टू स्टे विद देम, और ऐसे लाइक आई स्टेड विद माई पुलिस एंड एवरीथिंग लाइक अराउंड फॉर 7 days। जहाँ स्टार्टिंग से जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था ना, लाइक होल वे मेरे को पुलिस हर एक जगह मुझे लेकर गई, मुझसे पूछा गया मुझसे। एंड ऐसा था कि वो लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि तुमने अपने घर पे नहीं बताया। मैं एक ऐसे पर्टिकुलर रिमोट एरिया में थी, आई कैन एक्चुअली यूज़ दिस वर्ड, रिमोट एरिया, जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं थे, जहाँ पे मैं फ़िज़िकली बहुत टायर्ड हो रही थी, एंड प्रॉपर फूड नहीं था, मेरे पास पूरा पैसा नहीं था, एंड ना मेरे कोई दोस्त है, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अचानक से पुलिस ने मुझसे बोला कि तुम अपने फादर से मुझसे बात करवाओ, और उनको मैं उनको तुम्हारी सारी सिचुएशन बताना चाहता हूँ। तुम एक अकेली लड़की हो, तुम ऐसे फंस गई हो, तुम एक अंकल तुम्हारा अकेला छोड़ के चला गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एंड बिकॉज आई बिलोंग टू एन कंजर्वेटिव फैमिली, एक मैं राजस्थानी गर्ल हूँ, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड कि मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, बिकॉज उसके भी अपने एक फ्लॉज है। तो मेरे पेरेंट को अचानक ये बताना, एक फॉरेन लैंड से, जहाँ पे मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, जहाँ पे मुझे फूड नहीं है, जहाँ मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचा, मैं अकेली हूँ, वहाँ पे ये बताना कि मेरे साथ जो मेरा मेरा टीममेट था, वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया है, और मैं पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हूँ। बिलीव मी, आज तक मेरे घर वालों ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के अलावा मुझे कभी पुलिस स्टेशन में देखा ही नहीं है। तो वो एक इतना डिफ़िकल्ट था, मुझे पुलिस
पुलिस वाले लोग के पुलिस के सामने मुझे मेरे पापा को सारी सिचुएशन बतानी है। एंड बिलीव मी उस टाइम तो भगवान ने ही बचाया था, क्योंकि उन लोगों को किसी को लैंग्वेज नहीं आती थी। पापा को इंग्लिश नहीं आती थी और पुलिस को ना हिंदी आती थी प्रॉपरली और ना तो दैट वाज दी वे मैंने उनको मेवाड़ी में, राजस्थानी लैंग्वेज में मैंने उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। और पापा ने बोला तू वापस आ जा, तो उनको लगा कि पापा कंसर्न्ड है, वो मुझे वापस बुला रहे अपनी जर्नी छोड़ने चक्कर में। But okay, so now what happened actually was, I want to plot my case to you. अंकल के पास बहुत ज़्यादा सामान था, इट वॉज मोर देन 20 किलोस। एंड जैसे जैसे हम आगे ट्रैक पे बढ़ रहे थे तो एक सर्टेन पॉइंट आया था जो बहुत ज़्यादा अपहिल था, मतलब वॉकिंग 6 to 7 hours अपहिल वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और अंकल के पास, क्योंकि हम लोग हमारा अपना बिलोंगिंग्स, अपना लगेज खुद ही कैरी कर रहे थे, अंकल से वो नहीं हो पाया। तो और एक पॉइंट के बाद ना हम दोनों आगे पीछे हो गए थे। तो अंकल का मोरल में भी, आई कैन से मोरल डाउन हो गया था, और मे बी बिकॉज आई बिलीव कि उस टाइम मैं उनका मोरल थी, मैं उनको इतने लंबे रास्ते इतना लंबा लेकर आई, तो उस टाइम मैं शायद उनके पास नहीं थी, वो अकेले हो गए थे और वो मोरल डाउन के कारण नहीं हो पा रहा था, वो वापस चले गए। बिकॉज बिलीव मी, कोई छोटे, मेरे को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बट बिकॉज वहाँ नेटवर्क्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, अंकल वापस सारा सब कुछ लेकर चले गए। एंड वहाँ गलती ये हुई कि मेरा सारा बिलोंगिंग्स, फाइनेंशियली, पैसा वगैरह सब उनके पास रह गया था। फिर पुलिस, ये सब मुझे किसने बताया, ये सब मुझे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बताया था कि वो इंडिया पहुंच चुके हैं इस बस से, इस रूम नंबर से। इस रूम नंबर में वो रुके था, काठमांडू में इधर रुका था, वो सलौरी में इधर रुका था, बुप्सा में इधर रुका था। तो मेरे को उन्होंने सारा प्रूफ दिया, लोकल लोगों ने बताया जहाँ हम रुके थे, इस तरीके से हुआ। सो नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जर्नी इज़ ब्यूटिफुल, बिलीव मी। अब उस डेस्टिनेशन पे मैं तो नहीं पहुँच पाई, अभी भी मेरा ड्रीम है, बट द जर्नी विच आई हैड वॉज लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। मैं पुलिस के पास गई थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो मैंने फिर भी उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी भतीजी बोला था। तो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिलेशन ही क्रिएटेड। गलती सबसे होती है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। सो दैट्स दी सेकेंड लेसन। मैं खुद के लिए खड़ी थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त थे, सब लोग थे, सब पैसा, कोई भी कुछ भी कर सकता, मेरे पेरेंट्स भी पैसा दे सकते थे, बट बिलीव मी वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे ना पैसा मिला ना कुछ मिला, बट वॉट एक्चुअली हेल्प मी वॉज, मैं खुद के लिए थी। बिकॉज जब आप किसी फॉरेन लैंड में जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, हो सकता है आप उन्हें भी चीट कर रहे हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम को देखने के लिए, एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको 100 नज़रिए से सब लोग देखते हैं। तो आई वॉज लाइक, मुझे हर चीज़ से उधर गुजरना पड़ा। मेरे से इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, मुझसे बहुत सारे गलत क्वेश्चंस पूछे गए, वो लोग सॉरी बोल रहे थे, बट बिलीव मी, अगर एक इंसान ने मेरे साथ गलत किया ना, इट वॉज दी 100 पीपल जिन्होंने मेरे लिए वहाँ पे मेरे लिए खड़े थे। दे डिडंट न्यू मी, बट बिकॉज आई वॉज गर्ल, आई वॉज अलोन, मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने मुझे बॉर्डर पे पहुँचाया। एंड ये इट वॉज लाइक, उन्होंने जब बॉर्डर पे पहुँचाया ना, जिस बस में बैठाया था, आई बिलीव कि मेरा लक ही ख़राब चल रहा था, वो बस भी ख़राब हो गई थी। तो मेरे को इंडिया, आई वॉज लिटरली क्राइंग, लाइक आई वॉन्ट टू रीच इंडिया, बट मैं ऐसा था कि मैं 24 आवर्स लेट इंडिया बॉर्डर पहुंची। बट व्हेन आई रीच इंडिया, दैट टाइम आई एक्चुअली enjoyed again. I started a new journey. I started again my trip again. I went to Kedarnath, I went to Badrinath, I went to Mussoorie. I had a bike ride from Rishikesh to Badrinath, and I had a group of friends from India who accompanied me, who made my trip at the end beautiful. Well, here I place a video, like you can relate, like a small video, you can relate like how I went, how actually I ended in a beautiful way. No one is born with successful career, bright future. The journey is long and slow. What important is, are you ready to take it and move ahead? The person you see in the mirror has gone through a lot, the toughest time, and is still standing. That's the same person who deserves all the best from you.
And that's how I would like to end with you on my today's topic, questioning you all how you take your life and move on. Thank you so much.